السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ قفس طوبیٰ کرن قسط نمبر 14۔ ابھی تک اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دیوانہ وار بھاگتے گلی سے نکلا اور دائیں طرف بنی دکان پر رکا جہاں دکاندار شٹر اوپر کرتے دن کا آغاز کر رہا تھا۔ سنسان سڑک پر اکا دکا لوگ نظر آ رہے تھے جو یقیناً فجر کی نمازوں کے لیے گھروں سے نکلے تھے۔ وہ انہیں یکساں نظر انداز کیے دکاندار کی طرف بڑھا۔ بات سنیں، آپ نے صبح یہاں سے کسی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ صبح کون سے کپڑے پہنے تھے انہوں نے؟ پہلا جمعہ سے کہتے وہ سوچ میں پڑا۔ ہاں، گلابی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرف گئی؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولا۔ یہاں سے روز ہزاروں لوگ گزرتے ہیں بیٹا، میں کسی کی شکل و صورت یا حال حلیے پر غور نہیں کرتا۔ ویسے تم کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ دکاندار نے لا علمی کا اظہار کرتے سوال کیا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے دور تک پھیلی سڑک کو دیکھنے لگا جو اس کی بیوی کو نہ جانے کہاں لے کر گئی تھی۔ تارکول کی اس سڑک پر اس کے خواب بکھرے تھے، محبت کا سسکتا تڑپتا وجود پڑا تھا اور اعتماد کی وہ لاش اس کے پیروں میں بچھی تھی جس کی قاتل اس کی اپنی سگی ماں تھی۔ یا اللہ، میرے اللہ! اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اسے ایک رکشے کو اشارہ کر کے روکا اور سجاول کے گھر کا پتہ بتاتے خود کو کانپتے ہاتھوں سے آدم کو فون کرنے لگا۔ گن لے کر سجاول کے گھر پہنچو، جلدی! سرد و سپاٹ لہجے میں آدم کو حکم دیتے اس نے فون بند کیا اور رکشہ ڈرائیور پر برس پڑا۔ محبت! اس کی تیز چلتی سانسوں پر غور کرتے سورج نے پردے سے باہر نکلتے ایک آہ بھری۔ وہ بادل جو گزشتہ روز برس کر اپنا وجود کھو چکے تھے، وہ حیرت سے سورج کو دیکھنے لگے۔ انہیں کل ٹوٹ کر برسنا تھا یا محبت کی جدائی کے غم میں ہر آنسو بہا کر اپنا دل ہلکا کرنا تھا۔ وہ سوچ میں تھے کہ اتنے میں انہیں آسمان سے چھٹ جانے کا حکم ہوا۔ اب پورا مہینہ انہیں نہیں برسنا تھا، اور جب ایک مرد اپنی پسندیدہ عورت کی گمشدگی پر دن رات آنسو بہانے کے لیے تیار تھا تو بھلا بادلوں کو آنسوؤں کی کیا ضرورت تھی؟ وہ منہ چھپا کر بھاگ گئے۔ سورج وہیں قدم جمائے موجود رہا۔ اسے زریز نظر نہیں آ رہا تھا، اسے ابرش بھی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر اسے محبت کی وہ درد بھری آوازیں سنائی دے رہی تھی جو بہت جلد پوری کائنات میں گونجنے والی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر آغا جان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ معمول کے مطابق اخبار پڑھتے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، جبکہ خالدہ بیگم انہیں ناشتہ دے کر باورچی خانے کی صفائی کرنے لگی تھی۔ غزلان رات بھر کا جا کر جب باہر آیا تو آغا جان کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ بیٹیوں کی تکلیف پر تو باپ لرز جایا کرتے ہیں، اور آپ یہاں سکون سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں۔ آپ کے پاس دل ہے یا پتھر؟ بلکہ نہیں، پتھروں پہ بھی پانی پڑتا رہے تو وہ پگھل جاتے ہیں۔ آپ تو پتھروں سے بھی بدتر ہیں۔ تمام لحاظ بالائے طاق رکھتے غزلان نے نفرت سے کہا تو آغا جان نے اخبار میز پر رکھتے اسے دیکھا۔ کس بیٹی کی تکلیف پر لرزوں؟ وہ بیٹی جس کی وجہ سے مجھ سے میری بیوی چھن گئی۔ اس بیٹی کے لیے پریشان ہوں جو پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کو نگل گئی۔ میں گلناز کے بغیر ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا، مگر اس نے مجھ سے میری زندگی کا سب سے اہم رشتہ چھین لیا۔ میں گلناز سے کہتا بھی تھا کہ مجھے اولاد نہیں چاہیے، مگر وہ بضد تھی اور اسی کی ضد کی وجہ سے یہ منحوس میرے سر پر مسلط ہو گئی۔ وہ کرسی سے اٹھتے چلائے تو خالدہ بیگم بھی گھبرا کر کام چھوڑتے لاؤنج میں آ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ ابرش سے نفرت کر کے تائی جان سے محبت کا ثبوت دے رہے ہیں؟ وہ آپ کے پاس ان کی آخری نشانی ہے، آپ دونوں کے وجود کا حصہ ہے۔ کیا واقعی آپ کو اس کی تکلیف سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ساری زندگی تو اسے اپنی ڈانٹ اور مار سے اس کی بدنصیبی اور یتیمی کا احساس دلاتے رہے ہیں۔ کم از کم آج تو باپ بن کر سوچ لیں، آج تو ایک باپ ہونے کا فرض نبھا کر تائی جان کی روح کو سکون دے دیں۔ لڑکی کے رات بھر گھر سے غائب رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں، پھر بھی یہاں سکون سے بیٹھے ہیں جیسے وہ آپ کی نہیں بلکہ کسی دشمن کی بیٹی ہے۔ خدا را اپنی انا اور نفرت کو ایک طرف رکھ کر اس کے بارے میں سوچیں۔ آج تک آپ نے اسے مارا اور دھتکار کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا، مگر آج اسے آپ کی ضرورت ہے۔ پلیز آغا جان، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ وہ کہنا شروع ہوا تو غصے میں تھا، مگر پھر اس کا لہجہ غمزدہ اور التجائیہ ہو گیا۔ آغا جان کچھ دیر اس کے جڑے ہاتھوں کو دیکھتے رہے، پھر خفت سے سر چھٹک کر واپس بیٹھ گئے۔ اچھا، میں پولیس کو فون کر دوں گا، اب میرا پیچھا چھوڑ دو، وہ کہہ کر چائے کے گھونٹ بھرنے لگے جو حلق میں اٹک کر آگے جانے سے انکاری تھی۔ کاش میں آپ کے منہ پر زوردار تماچا مار سکتا، لیکن بے فکر رہیں، مکافات عمل کا ایسا تماچا پڑے گا نا
कि आप हैरान और परेशान रह जाएंगे, जैसे मैं जिमर की मौत के बाद रह गया हूँ। गजनान इन्हें डराते हुए एक नज़र खालदा बेगम पर डालकर बाहर निकल गया, जबकि आगाजान के दिल को किसी अनदेखी तकलीफ ने खुद में जकड़ लिया। शायद वो तकलीफ नहीं थी, बल्कि सिर्फ खौफ था, अपनी अना और गरूर के मट्टी हो जाने का खौफ। गन मुझे दो। सजावल के घर के सामने रिक्शा रोकते वो जल्दी से उतरा और पहले से खड़े आदम को मामले से आगाह किए बगैर गन का मुतालबा किया। हुआ क्या है? कुछ तो बताओ। एकदम से तुम। अपनी उसकी बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि जुरेज ने उसको धक्का दिया। मेरी बकवास तुम्हें समझ नहीं आ रही? गन दो, वरना मैं हर चीज तहस नहस कर दूंगा। खूनख्वार लहजे में कहते उसने खुद ही आदम से गन छीनी और सजावल के महल के दरवाजे पर खड़े गार्ड की टांग में एक गोली उतारकर आदम को पत्थर का कर दिया। वो जो उसकी हालत से वो नावाकिफ था, गार्ड को तड़प कर जमीन पर गिरते देखकर आगे बढ़ा और जुरेज को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो दरवाजे से निकलते दूसरे गार्ड पर भी फायरिंग करके उसे हमेशा के लिए अपाहज कर चुका था। ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ जुरेज, तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खो गया है क्या? आदम ने बेयकीनी से दोनों गार्ड्स को देखा और फिर जुरेज को पीछे से पकड़ते उसके हाथ से गन छीनने की कोशिश करने लगा, मगर वो आज किसी के काबू में आने वाला ना था। आदम को खुद से अलग करके जमीन पर गिराते वो अंदर की तरफ भागा। वसीलान तेजी से अबूर करते वो लाउंज के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सजावल को नाइट सूट में मलबूस बाहर आते देखा। वो फायरिंग की आवाज सुनकर नींद से जागा था और अब जुरेज को सामने देखकर सही मानों में घबरा गया। जलील बेगैरत, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता मेरी बीवी को कहाँ छुपा कर रखा है, जल्दी बोल। उसका गिरेबान पकड़ते जुरेज ने उसे बुरा भला कहते धाड़ कर पूछा। सजावल ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की तो जुरेज ने उसकी कनपट्टी पर गन तान दी। जल्दी भोंक, वरना भी तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मेरी बीवी कहाँ है, बोल। इस पर पूरी तरह से हावी होते जुरेज की गरजदार आवाज ने बंगले के दरो दीवार को हिला डाला। मुझे नहीं पता कि अब्रिश कहाँ है। मैं सच कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं अगवा किया। बचने की कोई राह ना दिखाई दी तो सजावल ने खौफजदा लहजे में कहा। जुरेज ने उसे पीछे से पकड़ा और उसका सर पूरी कुवत से दीवार पर दे मारा। झूठ बोलता है, मेरी बीवी को गायब करके अब मुकर रहा है। मैंने तेरी जिंदगी काबिल रहम न बना दी तो मेरा नाम भी जुरेज जासिम नहीं। उसकी चीखें और सर से निकलते खून की परवाह किए बगैर जुरेज उसका सर कई बार दीवार से मार कर उसे अधमुआ कर चुका था। तभी आदम ने अंदर कदम रखा और फर्श पर बिखरे खून और सीढ़ियों पर सहमे हुए बच्चे को देखकर जुरेज को मजीद मारने से रोकने लगा, मगर उसने सजावल को जमीन पर गिराते इस पर घोंसों की बारिश शुरू कर दी थी। आ, छोड़ो मुझे, मुझे नहीं पता कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। सिक्योरिटी, सजावल ने हाँफते हुए जुरेज को अपनी बात का यकीन दिलाते गार्ड्स को आवाज दी, मगर उसकी पुकार पर कोई भी ना आया। झूठ पकता है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि अब्रिश को कहाँ छुपा रखा है, वरना तुझ समेत तेरे बच्चे को भी ऊपर पहुंचा दूंगा। खजबनाक अंदाज में चीखते जुरेज ने धमकी दी तो सजावल ने तड़प कर सीढ़ियों की जानिब देखा। नहीं, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना, मैं सच कह रहा हूँ। तुम मेरे घर की फार्म हाउस की तलाशी दे दो। मैंने अब्रिश को नहीं पकड़ा, मेरा यकीन करो। सजावल ने अटकते हुए कहा तो जुरेज उसके ऊपर से उठा और अपने हाथों पर लगा खून अपनी शर्ट से साफ करते एक नजर आदम पर डाली, जो नफे में सर हिलाते उसे कुछ गलत करने से रोक रहा था। उसकी आंखों में तंबीह देखते जुरेज ने गन का रुख ऊपर की तरफ किया और हवाई फायर करते सजावल के साथ साथ अहमद को भी खौफजदा कर दिया। जुरेज, मैं सच कहता हूँ, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे अब्रिश का नहीं पता। मेरे बच्चे को मत मारो, उसका क्या कसूर है? इंतहाई बुरा इंसान होने के बावजूद उसके अंदर बाप की रूह जागी तो वो लरस कर सुरेश की मिन्नत करने लगा। अगर मुझे मेरी बीवी शाम से पहले ना मिली तो तुझे और तेरे बच्चे को अपने हाथों से मारूंगा। मुझे किसी रहम की उम्मीद मत रखना। मैं तुझसे बड़ा हैवान हूँ। उसे धमकी देकर ठोकर मारते वो बाहर निकला ताकि पुलिस स्टेशन जा सके, जबकि आदम उसके पीछे भागा। भाभी कैसे गुम हुई? मेरा मतलब है, तुम्हें यकीन है कि इन्हें किसी ने अगवा किया है? उसकी बातों से मामला समझ आने पर आदम ने गाड़ी में बैठते सवाल किया तो जुरेज ने गाड़ी स्टार्ट की जो आदम उससे लेकर गया था और अब इसी में सजावल के घर आया था। ये भी तो हो सकता है वो किसी सहेली के घर हो। प्लीज जुरेज, खुद को संभालो। पहले ही तुम दो मासूम लोगों को तकलीफ दे चुके हो। इन गार्ड्स का क्या कसूर था? गाड़ी आहिस्ता चलाओ जुरेज, वो उसे समझा दे। एकदम चीखा तो जुरेज ने गुस्से से गाड़ी की रफ्तार मजीद बढ़ा दी। इनका ये कसूर है कि वो सजावल के घर काम करते हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगे। मेरी बीवी लापता है। पूरी रात मैं वहां अबीहा का मसला हल करवाने में लगा रहा और यहाँ अब्रिश मुश्किल में फंस गई। मुझे डर लग रहा है। अबीहा की वो हालत मेरी आंखों के सामने आ रही।
نہیں نہیں، میری ابرش کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں انہیں بچا لوں گا۔ وہ گاڑی کو خطرناک حد تک تیز کرتے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آدم کو اپنی ذہنی اور دلی حالت سے آگاہ کر رہا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم مل کر انہیں ڈھونڈیں گے، لیکن تم پہلے خود کو تو سنبھالو۔ ایسی حالت میں تم انہیں تلاش کرنے کی بجائے خود کو بھی کھو دو گے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت بے دردی سے میری جان نکال رہا ہے۔ میرا سانس بند ہو رہا ہے۔ میں کیسا شوہر جو اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکا؟ اگر ابرش کو کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ پاگل ہو کر مر جاؤں گا میں۔ تکلیف سے کہتے اس نے گاڑی کو پولیس اسٹیشن جانے والی سڑک پر ڈالا۔ مجھے گاڑی ڈرائیو کرنے دو، آدم نے کہا تو اس نے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ میں امی کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ غصہ عروج پر تھا۔ آدم نے اس کے روح پر پریشان ہوتے ابرش کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ حوصلہ کرو یار، وہ مل جائیں گی۔ تم خود ہی تو کہتے وہ بہت بہادر ہیں۔ آدم نے اسے تسلی دی۔ عورت کبھی اتنی بہادر نہیں ہوتی کہ اپنی عزت کی حفاظت خود کر سکے۔ اگر اس میں اتنی سکت ہوتی تو اللہ تعالیٰ باپ اور شوہر کو اس کا محافظ نہ بناتے، اور مجھ جیسے شوہر جو اپنی بیویوں کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ سارا الزام خود پر لیتے زریز کی آنکھوں سے نمکین پانی بہنے لگا۔ خود کو سنبھالو یار، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اس کے پاس الفاظ کا قحط پڑ گیا تھا۔ اللہ مجھے چاہے ساری عمر جیل میں ڈال دے لیکن میری ابرش کی حفاظت کرنا۔ یا خدا مجھ سے میرا سب کچھ لے دے لیکن میری بیوی کی جان اور عزت بچا دے، میرے اللہ۔ زریز نے اس کے اس قدر درد سے دعا مانگی کہ آدم کو اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے اپنے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کو نیچے گرنے سے روکنا پڑا۔ یہ کیا گند ڈالا ہوا ہے؟ سمیٹو اس سب کو۔ تعبیر نے باتھ روم سے نکلتے بیڈ پر بکھرے نوٹس کو دیکھتے ہوئے زینی سے کہا، جو اپنا پین دانتوں میں دبائے کچھ سوچ رہی تھی۔ یہ ٹاپک نہیں سمجھ آ رہا، تم سمجھا دو گی؟ کتاب اس کی طرف کرتے زینی نے فکر مندی سے کہا۔ مجھے نہیں آتا، اور یہ سب سمیٹ کر میرے ساتھ کہیں باہر چلو۔ آج آدم کی سالگرہ ہے اور میں کیک کاٹنا چاہتی ہوں۔ تعبیر کی کہنے کی دیر تھی کہ زینی نے اپنا سر پکڑ لے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ انسان تمہیں بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا گیا اور تم اس کی محبت میں خود کو پاگل کر رہی ہو۔ بلکہ یہ محبت بھی نہیں ہے، کیونکہ محبت انسان کو اس طرح برباد نہیں کرتی جیسے تم ہو رہی ہو۔ زینی نے افسوس سے کہا تو تعبیر اس کے پاس بیٹھی۔ میں برباد کہاں ہوئی ہوں؟ مجھے تو آدم کی محبت نے سنوار دیا ہے۔ مجھے اسی عشق نے تو جینا سکھایا ہے زینی۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ محبت نہیں ہے؟ تم میرے جذبات کی توہین کر رہی ہو۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ زینی تنزیہ سر جھٹک گئی۔ کم ظرف انسان محبت کے معنی سمجھنے میں ہمیشہ غلطی کرتے ہیں۔ کسی ایک شخص کے لیے باقی رشتوں کو بھول جانا محبت نہیں ہے۔ محبت تو انسان کے اندر احساس پیدا کرتی ہے، اسے نرم دل بناتی ہے، اسے دوسروں کا درد سمجھنے کے قابل بناتی ہے۔ اور تم اس ایک شخص کی وجہ سے اپنی ماں کو بھلائے بیٹھی ہو، اس کی خاطر اپنی پڑھائی کو داؤ پر لگا چکی ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ وہ تمہیں کیوں نہیں ملا؟ زینی نے اسے سمجھاتے ہوئے سوال کیا تو وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھی گئی۔ کیونکہ تمہیں رشتوں میں توازن رکھنا نہیں آتا، تمہیں ایک طرف جھک جانے کی عادت ہے، اور قدرت کا نظام یہی ہے کہ انسان جس چیز کی طرف جھکتا ہے وہی چیز اس سے دور کر دی جاتی ہے۔ یہ تو تم ہر وقت محبت کی رٹ لگائے رکھتی ہو نا۔ یہ محبت نہیں ہے، صرف دل لگی ہے۔ ان خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت پسند بنو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے میں مصروف ہوئی، مگر تعبیر نے ماتھے پر بد لیے اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر دور پھینکی۔ آئندہ میری محبت کو دل لگی کہا تو میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ عشق ہے مجھے آدم سے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ایک روز مجھے مل کر رہے گا، اور اگر نہ ملا تب بھی میں ساری عمر اس کے نام پر گزار دوں گی۔ وہ میرا حصہ ہے، میرے ساتھ نہ ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اور میں اس کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس لیے آئندہ کچھ بولنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ وہ غصے سے کہتے کمرے سے نکلے اور پٹاخ سے دروازہ بند کر دیا، جبکہ زینی نے بیڈ سے اتر کر اپنی کتاب فرش سے اٹھائی۔ ہاں، اس آدم سے تو ملنا پڑے گا جو میری دوست کو پاگل بنا کر خود بھاگ گیا ہے۔ سوچتے ہوئے اس نے فیس بک پر آدم جہانگیر کو سرچ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس اسٹیشن کی چار دیواری میں داخل ہوتے زریز نے سیدھا ایس ایچ او کے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ کھولتے اجازت لیے بغیر اندر آ گیا۔ آدم ایک ضروری فون کے لیے باہر رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر آج یہ کال نہ کی تو زریز بہت بڑی مشکل میں پھنس سکتا ہے۔ جبکہ ایس ایچ او زریز کی اچانک آمد پر غصے سے تلملاتے کھڑا ہوا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر اندر نہیں آتے؟ تم 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 تو زریز جاسم ہو نا؟ اسے باتیں سناتے ہوئے ایک دم سے پہچان گیا۔ میری بیوی کل صبح سے غائب ہے، اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرو، اس کی تلاش کے لیے اپنے سپاہی بھیجو، جلدی۔
वो बोला तो एचएचओ उसके तहकमाना अंदाज पर कोड़ कर रह गया। मैं तुम्हारा मुलाजिम नहीं जो तुम मुझे हुक्म दे रहे हो। बैठकर अपना मसला बताओ। अपनी कुर्सी संभालते एसएचओ ने उसे फिर भी बैठने का इशारा किया। मेरी बेबी कल सुबह से लापता है। इसकी रिपोर्ट दर्ज करो, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। मुझे सजावल शाह पर शक है, बल्कि पक्का यकीन है कि उसने ही मेरी बीवी को गायब करवाया है। वो तेजी से लफ्ज पर लफ्ज चढ़ाए बोला तो एसएचओ कुर्सी से टेक लगाते हुए हंसा। यानी तुम्हारी बीवी भी सजावल शाह के इश्क में गिरफ्तार होकर घर से भाग गई। ये उस साल में सजावल के हाथ लगने वाली तीसरी लड़की है। हैरत है, इस बार सजावल ने शादीशुदा लड़की को फंसाया। वो खबासत से बोला जबकि जुरेज के तन बदन में आग लग गई। वो कुर्सी से उठते किसी खूनख्वार जानवर की तरह एसएचओ पर चढ़ दौड़ा था। मेरी बीवी घर से नहीं भागी, अगवा हुई है। भागी नहीं है वो मेरी बीवी। वो इसे थप्पड़ों से लाल कर देता अगर आदम ना पकड़ता। उसे महसूस हो रहा था कि उसके दरमियान की शरेयानें फटने के करीब है। छोड़ो मुझे। इस जलील इंसान की हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी बीवी के बारे में ऐसी बकवास करे। छोड़ो आदम। वो वैश्यों की तरह चिल्लाया, जबकि एसएचओ अपने कपड़े दुरुस्त करते सीधा होकर बैठा। अपने गुस्से को काबू में रखो जुरेज। तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से भाभी मिल नहीं जाएगी, बल्कि मामला मजीद खराब होता जाएगा। समझो इस बात को। वो उसे जोर से पकड़े समझाने लगा और जुरेज की सुर्ख आंखें भी उसे खौफ में मुब्तला कर रही थीं। आदम साहब, इनको यहाँ से ले जाएं, क्योंकि इतने बदतमीजी के बाद मैं किसी किस्म की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करूंगा। एसएचओ ने अपनी तौहीन पर सुलगते हुए कहा तो जुरेज ने मेज पर जोर से हाथ मारा। तुम्हारा तो बाप भी रिपोर्ट लिखेगा। इंतजार करो बस। वो वहशत सदा से लहजे में कहते बाहर निकला तो आदम ने गहरा सांस हवा में खारिज करते उसके कदमों की पैरवी की। क्या हो गया है तुम्हें? हर किसी से हाथापाई पर उतर आते हो। अच्छे खासे समझदार आदमी हो, लेकिन तुम्हें हर किसी से लड़कर हीरो बनना है। मेरा इंतजार कर लेते, मैं एसएचओ से बात करके उसे कायल कर लेता, लेकिन तुम्हें हर जगह अपनी बस दहशत दिखाने का शौक है। सड़क पर लोगों का लिहाज रखे बगैर आदम ने उसे डांटा तो वो अपनी गैर मामूली रफ्तार से चलती धड़कनों पर काबू पाते फुटपाथ पर बैठा। अगर अब्रिश को कुछ हुआ तो मैं सारी दुनिया को आग लगा दूंगी, और इस इंस्पेक्टर को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई अब्रिश पर इल्जाम लगाने की? ये सब सजावल के साथ मिले हुए हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं इनमें से किसी को नहीं छोड़ूंगा। जोर से मुठ्ठियां भेजते जुरेस ने अपनी आंखों की नमी से सामने सड़क के मंजर को धुंधाते हुए पाया। पता नहीं वो कहाँ होगी। पता नहीं जिंदा भी होगी या। तकलीफ से बात अधूरी छोड़ते उसने अपना सर हाथों में गिराया और दर्द के जेरे असर चंद आंसू टूटकर इसकी दाढ़ी में जज्ब हो गए। अल्लाह खैर करेगा। मैं आईजी से बात करता हूँ। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। मैंने खुर्शीद को कहा है कि वो अपने बंदे सजावल और जैद के पीछे लगाए, ताकि हम अब्रिश तक पहुंच सके। वैसे मुझे लगता है कि सजावल का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वो इतनी मार खाने के बाद वरना जरूर सच बोल देता। आदम ने उसके पास बैठते उसके कंधे पर हाथ रखते तसल्ली के साथ अपनी सोच का इजहार भी किया। वो ढीठ कभी सच नहीं बोलेगा, और अब्रिश मेरा इंतजार कर रही होगी। यार, मुझे अपने वजूद पर शर्म आ रही है। मैं क्यों नहीं कुछ कर पा रहा? तुम एक काम करो, जैद को पकड़ो। उससे पूछो कि अब्रिश कहाँ है। मैं अस्पतालों में दिखता हूँ, तुम जैद को पकड़कर फ्लैट में ले जाओ। तुम कर लोगे ना? वो बड़ी तरतीब से अंदाज में कह रहा था। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। मैं अस्पतालों से पता कर लूंगा। जाओ तुम। सुरेश ने कहा, मगर आदम बेचैनी से उसे देखेगा। इस वक्त तुम ठीक नहीं हो। मैं बकवास कर रहा हूँ कि मैं ठीक हूँ, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? आदम की बात मुकम्मल होने से पहले ही वो धाड़ा, तो आदम ने मजीद कुछ कहने की बजाय उसकी बात पर अमल करते खुर्शीद को फोन मिलाया। कराची एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए जाते हुए हवाई जहाज में दो नशिस्तें खाली पड़ी थी। इंतजार में नजरें बाकी मुसाफिरों पर टकाएं वो उदास सी थी। लम्हा ब लम्हा वक्त परवाज के करीब पहुंच रहा था, और जहाज भी बेचैनी से अपनी राहगीरों का मुंतजिर था। लेकिन अक्सर लोग टिकट करवाने के बावजूद वक्त पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच सकते थे, और आज भी जुरेज और अब्रिश की राह तकते हुए जहाज के सीने में कसक सी उठी। चलो, एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि बेजान चीजें भी जुदाई के दर्द को महसूस करती हैं। फिजा में एक आवाज गूंजी और फिर जहाज जमीन से जुदा होने लगा। हवा में मौजूद परिंदे फड़फड़ा कर इधर उधर बिखरे और जहाज को बुलंद होने का रास्ता देते बेकरारी से बोर्डिंग में खड़े वजूद को देखने लगे। वो क्या था? इंतहाई चमकदार और रोशन। शायद मोहब्बत की रूह जिस्म ओढ़े आ बैठी थी, या शायद जुदाई का सरापा पुरनूर चेहरे से जहाज को दूर होते देख रहा था। परिंदों ने उड़कर उस पर बैठना चाहा तो वो हवा में मौलिक हो गया।
हाँ, मगर किस्मत के पन्नों में आज की तारीख सुर्ख रोशनाई से लिखी गई थी और इसी तारीख को पैरों में रौंदते शहर के अस्पतालों में सरगर्दा फरेफ्ता अपनी मोहब्बत की तलाश में देखने वालों को हैरान कर रहा था। उसने आज के दिन में न जाने कितने साल जी लिए थे। वो नहीं जानता था कि अब्रिश कहाँ है, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता था कि वो ठीक नहीं है। उसके दिल में उठने वाला दर्द बेमायनी नहीं है। उसकी आंखों से बार-बार गिरने वाले आंसू बिला मकसद नहीं थे। वो वाक़ई मर रहा था। वक़्त के गुज़रने के साथ-साथ उसे एहसास हो रहा था कि कोई चीज़ उसकी मुट्ठी से फिसलती जा रही है। मगर वो सितम तो ये था कि वो चीज़ नहीं थी। वो अब्रिश अहवात थी, उसकी महबूबा, उसकी बीवी, उसकी कुल कायनात। मिस्टर जुरैस, रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे पुकार कर अपनी तरफ मुतवज्जो किया, तो वो चौंक-सा गया। हाँ, हाँ जी, अब्रिश का कुछ पता चला? आवाज़ का भारी और बोझलपन उसके दर्द की मुकम्मल अक्कासी करने में नाकाम था। कल एक टैक्सी का एक्सीडेंट हुआ था और मौका पर ही ड्राइवर हलाक हो गया। उसके साथ एक लड़की थी, जिसका चेहरा बुरी तरह खराब हो गया है। हमने उसके घरवालों का पता लगवाने की कोशिश की, मगर उसके पास ना मोबाइल और ना पर्स वगैरह, जिसमें हम उसके घरवालों को तक पहुंच सकते। अभी वो लड़की कुछ और भी कह रही थी, मगर सुरेश को अपनी कुव्वत समात बंद होती महसूस हुई। उसके कदम लड़खड़ाए तो वो काउंटर का सहारा लेते जरा सा झुका। इसकी गर्दन में कोई लॉकेट है? अब्रिश लिखा है इस पर। अब्रिश नाम का लॉकेट, इंग्लिश के हरूफ। उसने अपनी बंद होती सांसों को बहाल करने की कोशिश की और कांपते लहजे में बेतरतीब जुमले बोले। ये तो मालूम नहीं। आज सुबह ही उनका इंतकाल हुआ और डॉक्टर्स ने उन्हें सर्द खाने मुंतकिल कर दिया। आप अपना नाम और नंबर लिखवा दें, मैं वार्ड बॉय को कहती हूँ, वो आपको डेड बॉडी के पास नहीं जाएगा। वो लड़की कहकर इसके जवाब के इंतजार करने लगी, मगर वो बेयकीनी से अस्पताल की लंबी राहदारी को देखता रहा, जो उसे तंग और अंधेरी कब्र की मानिंद लग रही थी। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने वार्ड बॉय को बुलाया तो जुरेज ने मुर्दा कदमों से उसकी पैरवी की। उसके पैरों की लर्जिश फर्श को भी महसूस हो रही थी और सीना तान कर खड़ी दीवारें उसकी धुंधलाती निगाहों में रक्स करते अब्रिश के अक्स को देखकर आपस में सरगोशियां करने लगी। जमीन इसके पैरों में कुफल डाल रही थी, मगर वो कदम ब कदम सर्द खाने के करीब आता गया। नहीं, ये अब्रिश नहीं हो सकती। वो वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वार्ड बॉय ने सर्द खाने का दरवाजा खोलकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो वहीं चौखट पर ठहर कर अपने दिल को तसल्ली देने लगा। आंसू बह रहे थे, मगर बाहर की जानिब नहीं, अंदर की जानिब, आंखों से दिल तक का सफर तय करते उसकी धड़कनों के दरमियान हायल हो रहे थे। उसे लगा कोई उसे अंदर से नोच रहा है। तकलीफ, दर्द, अजियत, ये अल्फाज छत से लटकते तंजियां हंस रहे थे कि आज सुरेश जासिम इनमें से कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। वो खाली हो रहा था, हर उठते कदम के साथ। इस तरफ आए। जूते की नोक ने सर्द खाने के फर्श को छुआ तो वार्ड बॉय उसे दाएं तरफ बुलाने लगा। वो स्पाट चेहरा लिया आहिस्ता आहिस्ता सफेद चादर में लिपटे मुर्दा जिस्म के करीब जा रहा था। सूरज पर पड़ते ग्रहण ने यकदम माहौल को स्याह किया तो बाहर से शोर की आवाजें सुनाई देने लगी। मगर वो तो बहरा हो चुका था। लाश के करीब आकर रुका और अपना कांपता हाथ आगे बढ़ाकर बेबसी से आंखें बंद की। वो कैसे बताता कि इसका दिल सर्द खाने से भी ज्यादा सर्द हो चुका था। दूर कहीं जाए नमाज पर एक वजूद सजदे में झुका मुसलसल आंसू बहा रहा था। सफेद चादर अपने वजूद पर ताने उसके आंसू मसल्ले पर जज्ब हो रहे थे, मगर दिल का बोझ था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज मैंने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से अपना बेटा खो दिया। सर उठाते नफीसा बेगम ने अपने आप को कोसा, जो सुबह से कई बार जुरेज को फोन कर चुकी थी, मगर वो तो जैसे पत्थर का हो गया था। या अल्लाह, अब इसको सही सलामत वापस पहुंचा दे, वरना मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी और जुरेज भी कभी मुझे माफ नहीं करेगा। वो तो शायद अब मुझसे नफरत करने लगी। हाँ, ये मैंने क्या कर दिया या अल्लाह। इन्हें शिद्दत से एहसास हो रहा था कि वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुकी हैं। मैंने तो जुरेज के भले के लिए ये सब किया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि अब रिश्क गायब हो जाएगी। काश मैं उसे घर से ना निकालती, इस पर इतना जुल्म ना करती। काश। पछतावे की आग में जलते वो मुसलसल अब्रिश के लिए दुआ कर रही थी, मगर इनके दिल की बेसुकूनी किसी सूरत कम नहीं हो रही थी। वह मजीद कुछ देर वहीं बैठी रहती, लेकिन दरवाजे की दस्तक ने उन्हें उठने पर मजबूर कर दिया। शायद जुरेज अब्रिश को लेकर आया हो। एक उम्मीद के तहत वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जब दरवाजा खोला तो गसलान को सामने पाकर इनका दिल होने लगा। तुम क्यों आए हो? सुरेश ठीक है ना?
ग़ज़लान की आमद ने उन्हें परेशान कर दिया था। जी, वो ठीक है। उसने सुबह मुझे फ़ोन किया था कि आपको घर ले जाऊँ, लेकिन इस वक़्त मैं कुछ मसरूफ़ था इसलिए अभी आया हूँ। दरवाज़े पर खड़े ही ग़ज़लान ने आने की वजह बताई। क्या मतलब? सुरेश घर नहीं आएगा? इन्हें धचका लगा। मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक अब्रिश नहीं मिल जाती तब तक आप हमारे घर ही रहेंगी। उसने इत्तला दी तो नफीसा बेगम काँप गई। मेरा बच्चा मुझसे इतना नाराज़ है कि मुझे घर से निकाल रहा है। इसने तुमसे बात की, लेकिन वो सुबह से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा। उसे बोलो कि एक बार मुझसे बात कर ले। मुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है और मैं इससे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। तुम उसे फ़ोन करो और मेरी बात करवाओ। वो दिल बर्दाश्तगी से बोली तो ग़सलान अंदर दाख़िल हुआ। वो अभी आपसे बात नहीं करना चाहता। आपने अब्रिश पर शक करके उसे घर से निकाल दिया। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर उसने आप लोगों को धोखा देना होता तो वो पूरा साल जुरेज़ के इंतज़ार में क्यों बैठती? मैं कसूरवार हूँ। मैंने हर मौके पे उसे बहकाने की कोशिश की थी, मगर वो इतनी बाकिरदार थी कि हमेशा जुरेज़ के लिए मुझे धत्कारती रही। निकाह के बाद जुरेज़ की गुमशुदगी उसके लिए कितनी तकलीफ़ दे थी, ये हम सब जानते हैं। सिमर और मैं उसके दर्द के गवाह हैं। यकीन करें फूफो, जब से इसका रिश्ता जुरेज़ से तय हुआ था, तब से उसने कभी मुझसे सीधे मुँह बात नहीं की। हमेशा मुझे मेरी हदूद में रखा। लेकिन आपने क्या किया? इस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया। हाँ, आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो जुरेज़ को धोखा दे रही है? वो दरवाज़ा बंद करते इन पर फट पड़ा। नफीसा बेगम का बेचैन दिल मज़ीद तड़पने लगा। नदामत का एहसास उन्हें अंदर ही अंदर मारने लगा था और सबसे बड़ी जुरेज़ की नाराज़गी थी जिसे सहने का हौसला इनमें मौजूद ना था। जुरेज़ का हक है कि वो आपसे नाराज़ हो, लेकिन इसके बावजूद उसे आपकी फ़िक्र है। इसलिए मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आप जल्दी से तैयार हो जाएँ, फिर हमें निकलना है। वो कहकर सहन में बिछी चारपाई पर बैठ गया, जबकि नफीसा बेगम पेशेमानी से चलती अंदर गई और अपना पर्स लेकर बाहर आ गई। अगर अब्रिश ना मिली तो? उन्होंने लड़खड़ाते लहजे में ग़ज़ान से पूछा तो वो तल्ख़ी से मुस्कुराया। फिर हम सब पछताएँगे। हम सब ने अब्रिश के साथ गलत किया। आगा जान, अम्मी, मैं और आप सब ने ही तो उसे तकलीफ़ पहुँचाई है। सवाए जुरेज़ के उसे हर रिश्ते से अज़ियत मिली। बस एक जुरेज़ ही है जो पागलों की तरह उसे ढूँढता फिर रहा है। वैसे किस्मत बड़ी मेहरबान थी अब्रिश पर, जो इतना चाहने वाला साथी मिला। आखिरी जुमला कहते एक टीस उसकी रूह में चीख उठी, लेकिन वो अपने दिल की आवाज़ से एराज़ बरतते बाहर निकल गया तो नफीसा बेगम अपने आंसू रगड़ते उसके पीछे आई। इसका रूम-रूम दर्द से कँप-कँपा रहा था। रूह जिस्म का साथ छोड़ने के लिए बेताब थी और उसकी पेशानी की रगें वाज़ेह होते पसीने की बूंदें जज़्ब करने की कोशिश कर रही थीं। फिर तारीख के दर्दशुदा लम्हे में उसके लरसते हाथ ने सफ़ेद चादर को पकड़कर चेहरे से हटाया, तो एकदम सूरज ग्रहण खत्म हुआ। उसके इर्द-गिर्द की ज़मीन काँप उठी। दीवारें हैरान और शशदर सी लाश का चेहरा देख रही थीं, जो बुरी तरह खराब होकर अपनी पहचान खो चुका था। उसकी सांसें बंद थीं, यूँ कि गोया दिल ने न धड़कने की कसम खा ली हो। पलकों की जुम्बश भी रुककर स्याह-नम आँखों की तड़प का मंज़र पेश कर रही थी। उसका हाथ मज़ीद आगे बढ़ा, तो उसने लाश के हाथ को छुआ। चेहरे से पहचान करना मुश्किल थी, मगर वो पहचान सकता था। उसके चेहरे से, उसके लम्स से, उसके बालों से, उसके बदन पर मौजूद हर शय से। वो उसे खुद से ज़्यादा पहचानता था। वो उसकी रूह में बसती थी, तो वो उसके वजूद को कैसे न पहचान पाता? वो कैसे इसके और मुर्दा जिस्म के लम्स में फ़र्क महसूस न कर पाता? बदन मरने के बाद लम्स खो देता है। क्या वाक़ई? वो जिस्म चेहरे से पहचानने के काबिल नहीं रहा था, मगर वो पहचान सकता था कि ये उसकी अब्रिश नहीं है। ये जिस्म उसकी अब्रिश का नहीं है। अगर किसी की रूह को 2 हिस्से करके जोड़ दिया जाए, तो वो कैसा महसूस करेगा? अगर किसी की ज़ात को पाश-पाश करके फिर से समेटा जाए तो क्या एहसास होगा? गुज़र-रेज़ जासिम से पूछ लेता। बाहर सूरज से ग्रहण हटा तो यहाँ उसके सिसकते दिल से। वो इस लाश को छोड़ते चंद कदम पीछे हुआ, तड़पते, लरसते, काँपते वजूद के साथ। ढह जाने के करीब था, गोया सातों आसमान इस पर टूट गिरे थे। वो लाश अब्रिश की नहीं थी। इस अस्पताल के सर्द खाने में पड़ी लाश उसकी बीवी की नहीं थी। उसे अपने हिस्से मुर्दा होती महसूस हुई, यूं कि जैसे वो हर शय से खाली हो गया था। एकदम उसके घुटने नीचे की जानिब मुड़ने लगे। टांगे लड़खड़ाहट पर काबू पाते फर्श पर ढह सी गई। उसकी पेशानी ने निश्चय झुकते फर्श पर अपना सर टिका दिया। कोहनी अभी नीचे लग गई थी। उसके बाल फर्श पर बिखर गए।
वो आज अस्पताल के सर्द खाने में यूं झुका था जैसे आज से पहले कभी ना झुका। अपना माथा नीचे गिराए वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दिया। वो बावजू नहीं था। वो ना जाने किस समत सजदा कर रहा था। हाँ, ज़रूरी है कि किबला सामने हो, मगर आज वो अपने हवास में कहाँ था कि दुरुस्त समत का तयन करता। जिस्म तो रोज़ ही झुक जाने का आदी था, लेकिन आज उसकी रूह तड़प कर यूँ झुकी थी कि अंदर दाखिल होने वाले दोनों डॉक्टर्स हैरानी से वहीं ठहर गए। मर्द यूँ भी रोते हैं? ये तड़पते हैं कि देखने वाला काँप उठे? इन्हें ताज्जुब हुआ, लेकिन जुरैज को परवाह कहाँ थी? वो अपने आँसुओं से फर्श तर कर चुका था। हाँ, रोज़ ही फर्श की धुलाई होती थी, लेकिन आज जिस नमकीन पानी ने उसे धोया था, वो बहुत ख़ास था। बहुत ख़ास कि इस पर अब्र शहबाद का नाम दर्ज था। पैर, टाँगें, बाजू और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसका पूरा जिस्म शल होने लगा, मगर वो यूँ ही सजदे में झुका रोता रहा। रूह निकाल कर वापस डाल ली जा रही थी। अमल मुश्किल तो था, इंतहाई तकलीफ़देह था, लेकिन वो सह रहा था। आंसू मुतवातर बहते इर्द-गिर्द की हर शय को साकत कर रहे थे। पूरा साल जेल में सब्र से गुज़ारने वाला मर्द आज बुरी तरह टूट गया था। वक़्त फिसलता गया, वो रोता रहा और जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वो चौंका, जैसे किसी ने उसे जगा दिया हो। अपना माथा उठाते उसे अपना जिस्म अकड़ता महसूस हुआ, मगर वो हिम्मत करके उठा तो डॉक्टर ने एक हैरत भरी निगाह उस पर डाली और फिर उसे गले से लगा लिया। मुझे उस लड़की पर रश्क आता है जिसकी खातिर आप यूँ तड़प रहे हैं। अल्लाह ताला उसे सलामत रखे और जल्द ही आपसे मिला दे। लेकिन पता है क्या? डॉक्टर इसकी कमर पर थपकी देते उससे अलग हुआ। आजकल खालिस मोहब्बत बहुत कम लोगों को होती है, और जो मोहब्बत जैसे पाकीज़ा जज़्बे की रूह को पाले, वो महबूब के दूर जाने पर यूं ही तड़पता है। आप भी सब्र करें कि मोहब्बत के मदार में हर गर्दिश के बाद आपकी रूह लहूलुहान होने वाली है। डॉक्टर ने उसे तसल्ली के साथ आने वाले वक्त के बारे में आगाह किया, मगर उसके ज़हन में कहाँ कोई बात बैठ रही थी। क्या कहा? लहूलुहान? वो तो पहले ही हो चुका था। अब्रिश की कुछ घंटों की दूरी ने उसे निचोड़ डाला था। फिर लहूलुहान होना और किसे कहते हैं? वो एकदम पलटा और इस लाश को देखकर जिस पर चादर दे दी गई थी। वो अब्रिश नहीं थी, मगर वो किसी की तो बेटी थी। उसका दिल इत्मीनान कैसे पा लेता? वो डॉक्टर को जवाब देने के बजाय अपनी आस्तीन से आंसू साफ करते बाहर की तरफ भागा, यूं कि मोहब्बत के वजूद ने उसके पैरों को बूसे दिए थे। चलो, पहले इम्तिहान में तो तुम सुरखरू हुए। मोहब्बत के जिंदा वजूद ने फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए फख्र से कहा। वो अस्पताल के सफेद फर्श पर भागते उस शख्स को देख रही थी जिसे अभी उसने आजमाइशों की भट्टी से गुजारना था। किसने कहा सिर्फ जिंदगी आजमाती? आह, मोहब्बत जिंदगी से बड़ी आजमाइश है। आदम के फ्लैट में शोर बरपा था। खुर्शीद के लोग जैद को पकड़कर उसके फ्लैट में ले आए थे और अब वो दोनों उसे कुर्सी पर बांध कर उससे अब्रिश के बारे में पूछ रहे थे, मगर वो कुछ मानने को तैयार न था। झूठ मत बोलो और इंसानों की तरह बताओ कि अब्रिश कहाँ है, वरना तुम्हें पता है कि एक पुलिस वाला क्या कर सकता है। उसके बार बार इनकार की वजह से आदम ने उसके सर के बाल पकड़कर खींचने धमकी दी। जो दिल में आओ करो, लेकिन हमने जुरेज की बीवी को नहीं गायब किया। अगर यही करना होता तो बहुत पहले कर चुके होते। लेकिन तुम में इतनी अकल नहीं है कि मामले को समझो। बल्कि मुझे तो तुम सब पर शक हो रहा है। तुम लोग खुद ही अब्रिश को गायब करवा के मुझे और सजावल को मुजरिम साबित करवाना चाहते हो, ताकि तुम्हें जुरेज को मारना ना पड़े और ताबीर भी बच जाए। लेकिन मेरे भाई, एक बात याद रखना, तुम्हारी कोई चालाकी जुरेज को बचा नहीं सकती। सैद ने इत्मीनान से कहा तो आदम खुर्शीद को देखने लगा। जैद के बेखौफ रवैये से लगता था कि वो वाकई अब्रिश के बारे में कुछ नहीं जानता। लेकिन अगर वो सजावल की कैद में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? वो खुर्शीद को इस पर नजर रखने का कहते अपने कमरे में आया और जुरैज का फोन मिलाने लगा। लेकिन गाड़ी को बेढंगे अंदाज से चलाते जुरैज को फिलहाल उसे कोई दुनियावी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वो तो शायद इस दुनिया में रहा ही नहीं था। पता नहीं ये फोन क्यों नहीं उठा रहा। ठीक है भी या नहीं। एक तो मेरी कभी बात नहीं सुननी होती। अब मैं यहाँ उसकी फिक्र में घुलता रहूं। दूसरी तरफ की खामोशी पर आदम मुंह में बड़बड़ाते मैसेजेस करने लगा, मगर डैशबोर्ड पर रखा जुरैज का फोन इसकी तवज्जो हासिल करने में मुकम्मल नाकाम था। आदम कमरे से निकलकर वापस जैद के पास आया जो उसी तरह बैठा था। फिर खुर्शीद से मशवरा करके उसे छोड़ दिया। अच्छा, अब मैं जुरैज के पास जा रहा हूँ। तुम सजावल और जैद पर नजर रखो, ताकि उन्होंने अब्रिश को अगवा किया तो हमें कोई सुराग मिल सके। लेकिन जैद का पुरएतमाद लहजा यही जाहिर कर रहा है कि ये काम उन दोनों का नहीं है।
वो अपनी सनग्लासेस लगाते खुर्शीद से कह रहा था। हाँ, मुझे भी यही लगा है। लेकिन ये ताबीर कौन है? खुर्शीद ने पूछा तो वो सर खुजा गया। कोई नहीं है उस्ताद, तुम बस दुआ करो कि अब्रिश मिल जाए, वरना हमारा जुरेस पागल हो जाएगा। वो बात बदलते मंजर से गायब हो गया, जबकि इसके फोन पर जैनी नूर की आईडी से पैगाम मौसूल हो रहे थे। गाड़ी के टायर सड़क से रगड़ खाते तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो रात के फैलते साए सुरेश के दिल को किसी सांप की तरह डसने लगे। आज चांद जोबन पर था, सफेद चमकता मुकम्मल चांद जो आसमान की जीनत बने उसके जिस्म में जहर घोल रहा था। फजर से शुरू हुई तलाश अभी तक खत्म नहीं हुई थी। अक्टूबर के आखिरी दिनों में मौसम सर्द हो रहा था मगर इसके इर्द गिर्द जैसे कोई लावा भड़क रहा था, जिसमें उसके वजूद की किरचियां जलकर राख होते धुआं छोड़ रही थीं। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके साथ बैठा है। फ्रंट सीट पर हंसता मुस्कुराता चेहरा, गुलाबी कपड़ों में दुपट्टा गर्दन में हायल किए अब्रिश नाम का लॉकेट छुपाए। वो वजूद दिलकश मुस्कुराहट से उसे ही देख रहा था। इसका पाँव एकदम ब्रेक पर लगा। स्टीयरिंग पर जमे हाथ कमजोर पड़ने लगे। तने हुए असाब ढीले होने लगे। वो अब्रिश थी। पोनी टेल बनाए रोशन आंखों से उसे देखती। उसके होंठों में जंबिश हुई जैसे वो कुछ कहना चाह रही थी। जुरेज की गाड़ी सड़क के बीच रुक गई थी। उसने बेख्तियार अब्रिश को छूना चाहा मगर ये क्या। उसका जिस्म हवा में तहलील होकर नजरों से गायब हो गया। जुरेज का बड़ा हाथ वहीं साकत रह गया। मतलाशे निगाहें इर्द गिर्द देखने लगी मगर वो कहीं नहीं थी। अब्रिश! वो चीख उठा था, हलक फाड़ कर यूं कि उसकी आवाज गाड़ी के शीशों से निकलते सड़क के किनारे लगे दरख्तों में जज्ब हो गई। कहाँ चली गई हैं आप? क्यों नजरों से ओझल हो गई हैं? देखो तो सही, मैं आपके बगैर अंदर ही अंदर मर रहा हूँ। अपने जुरेज पर कुछ तो रहम करें। ये नहीं रह सकता आपके बगैर। उसने अपना सर स्टीयरिंग पर रखते अब्रिश से इल्तिजा की थी। उसकी गाड़ी के पीछे लगी कतार उसके चलने का इंतजार कर रही थी मगर वो अब गाड़ी चलाने की हालत में नहीं था। अचानक गाड़ी का दरवाजा खुला और आदम उसके साथ वाली सीट पर बैठा। सुरेश, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ और गाड़ी क्यों रोक दी है? पीछे देखो कितना रश लग गया है। वो जो दूर से उसकी गाड़ी पहचानते रिक्शे से उतरकर दौड़ता हुआ यहाँ आया था फूली सांस से बोला मगर सुरेश के जिस्म में कोई हरकत ना हुई। सुरेश, अब्रिश का कुछ पता चला? उसके कंधे पर हाथ रखते आदम ने खौफजदा लहजे में पूछा तो जुरेज ने सर उठाते खाली खाली निगाहों से उसे देखा। नहीं। उसका चेहरा सुर्ख और पसीने में शराबूर था। आदम ने गाड़ी से निकलते उसकी तरफ का दरवाजा खोला और बाहर निकालते हुए ड्राइविंग सीट संभाली। बैठो यार। उसे बाहर जमा देखकर आदम ने शीशे से पुकारा तो वह फ्रंट सीट पर बैठ गया। ये क्या हालत बना दी है? बरसों के मरीज लग रहे हो। मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे मत भेजो लेकिन तुम्हें हुक्म चलाने की पड़ी रहती है। और यकीनन सुबह से कुछ खाया भी नहीं होगा तुमने। क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो यार? ऐसा करने से भाभी मिल तो नहीं जाएंगी, बल्कि तुम अपनी हालत और हिम्मत भी खो दोगे। तुम सुन रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? क्या मैं फजूल में बोल रहा? गाड़ी चलाते हुए जुरेज पर शदीद खफा हुआ जो उसे देखने की बजाय सामने सड़क पर भागती गाड़ियों को देख रहा था। अभी हम कुछ खाएंगे, फिर दोबारा पुलिस स्टेशन चलेंगे, लेकिन तुम वहां कुछ नहीं बोलोगे। मैं खुद एसएचओ से बात करूंगा, तुम बस खामोश रहना। जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, इसलिए तुम अपने गुस्से पर काबू रखो। वो किसी कैफे के सामने गाड़ी रोकना चाहता था। सुरेश यार, तुम क्यों अपने साथ साथ मुझे भी परेशान कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि भाभी मिल जाएंगी, फिर क्यों गूंगे बहरे बनकर बैठे हो? पहले ही मुझे तुम पर शदीद गुस्सा है। अब मुझसे कुछ बोल लूं, वरना मैंने गाड़ी ठोक देनी है, फिर इकट्ठे ही ऊपर जाएंगे। उसके फोन ना उठाने वाली हरकत का सारा गुस्सा आदम ने अब उतारा तो सुरेश ने उस पर नजरें गाड़ी। कैसे मिलेगी वो? सारे शहर के अस्पताल छान मरे, कब्रिस्तान तक देख लिया कि शायद वो जमीन की कब्र पर हो, लेकिन वो नहीं मिली। दूसरी रात आ गई है और उनकी कोई खबर नहीं। वो ड्राइवर भी गायब है जिसके साथ अम्मी ने उसे भेजा था। उसकी टैक्सी का पता लगवाने की कोशिश की मगर वो कोई कामयाबी नहीं हुई। पता नहीं वो कहाँ चली गई है और न जाने कितनी बार वो मुझे पुकार चुकी होंगी। मुझे अभी महसूस हुआ था कि वो कुछ कहना चाह रही हैं मगर कह नहीं पा रही। वो मुझे कुछ बताना चाहती हैं, मैं क्यों उन्हें सुन नहीं पा रहा? क्यों इतना बेबस हो गया हूं मैं? वो तकलीफ की इंतहा को छू रहा था। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ लेकिन तुम सब्र करो ना। उन्होंने पूरा साल तुम्हारी गैर मौजूदगी में सब्र किया, फिर तुम 2 दिन में ही क्यों हिम्मत हारने लगे हो? आदम का गुस्सा हवा बनकर उड़ गया। बेचारा रह तो गया, सिर्फ जुरेज के लिए गम और दुख। मैं हिम्मत नहीं हार रहा।
मैं खुद को हारा हूँ। और सब्र? वो खोखला सा हँसा। मर्द साल भर भी घर से गायब रहे तो इसकी इज़्ज़त लुट जाने का खौफ नहीं होता। लेकिन औरत एक रात भी बाहर गुज़ार दे तो मुझ जैसे मर्दों की जान हथेली पर आ जाती है। मुझे खुद से घिन आ रही है कि मैं अभी तक इन्हें ढूँढ क्यों नहीं पा रहा। या यहाँ बहुत दर्द हो रहा है जैसे कोई दिल को मुट्ठी में लेकर मसल रहा हो। वो बेहिम्मती से अपने दिल का हाल बयान करते सीट से टेक लगाए, गहरे-गहरे साँस लेने लगा। डॉक्टर के पास चलें? उसकी बिगड़ती हालत से परेशान होते आदम ने पूछा। नहीं, मुझे अब्रिश के पास ले जाओ। तुम्हारे तो पुलिस में दोस्त होंगे ना? इनको बोलो कि वो हमारी मदद करें। कुछ करो आदम। अपने दिल के मकाम पर हाथ रखते तकलीफ की वजह से नीचे सर झुकाते सांस लेने लगा। या तुम्हें यकीन है कि वो अगवा हुई हैं? क्योंकि तुम खुद बता रहे हो कि तुम इन्हें डांट कर आए हो और फिर आंटी ने इन्हें धक्के देकर घर से निकाल दिया। तो हो सकता है कि वो गुस्से में जानबूझकर तुम्हारी नजरों से ओझल हो गई हो। आदम ने इंतहाई मोहतात लहजे में अपने ख्याल का इजहार किया, मगर अगले के लम्हे जुरेज के बिगड़ते तासुरात ने उसे पछताने पर मजबूर कर दिया। होश में तो हो तुम? पता भी है कि किसके बारे में बात कर रहे हो। निकलो मेरी गाड़ी से। और आज के बाद अब्रिश के बारे में कोई बकवास की तो दोस्ती का लिहाज भी नहीं रखूंगा। वो वाकई अपना ज़हनी तवाज़ुन खो रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम अपना गुस्सा एक तरफ रखकर गौर करोगे, तो तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। हो सकता है वो अपनी किसी सहेली के घर हो और हम ख्वामख़्वाह सजावट और ज़ैद पर शक कर रहे हों। देखो सुरेश, इस वक़्त तुम ठीक नहीं हो, इसलिए तुम्हारी सोचने-समझने की सलाहियत स्लब हो गई है। लेकिन ये भी तो देखो अगर भाभी अगवा हुई होती, तो अभी तक कोई ना कोई सुराग तो ज़रूर मिल जाता पर ये क्या? सर नीचे करो ज़ुरेज़। बात करते-करते सामने पुलिस की गाड़ी और बावर्दी पुलिस अफ़सरों को फायरिंग करता देख आदम ब्रेक लगाते चीखा, जबकि सुरेश ने भी हवास बाख्तगी से सर नीचे करते खुद को बचाने की कोशिश की, मगर एक गोली सामने का शीशा तोड़ते उसके दाएँ बाजू में पेवस्त हो गई। खून तेज़ी से निकलकर गाड़ी को सुर्ख करने लगा, जबकि वो शिद्दत दर्द से अपने बाजू को हाथ से दबाते कराहने लगा। दिल में उठती टीसों ने भी ज़ोर पकड़ लिया था। मगर तराजू की एक पलड़े में दिल की तकलीफ और दूसरे पलड़े में बाजू की तकलीफ रखी जाती तो दिल वाला पलड़ा भारी होता। खून बाजू से रसते उसके कपड़ों को मैला कर रहा था, मगर उसके दिल से रसने वाले खून का क्या, जिसने उसकी पूरी रूह को मेल मैल से भी सा- मैल से भी सांस लेना भी मुश्किल बना दिया था। जुरेज ये पट्टी बांधो, जल्दी करो। फौरन अपनी शर्ट उतारते जुरेज की गोद में रखते आदम ने चिल्लाया, मगर इससे पहले ही पुलिस अफसरान ने इन्हें चारों तरफ से घेरकर गाड़ी के दरवाजे खोलकर इन्हें बाहर निकाला। हाँ, सुरेश के जख्मी बाजू को सिपाही ने जोर से दबोचा तो उसकी रंगत स्याह पड़ने लगी। चले मिस्टर जुरेज जासिम, आपको सजावल शाह पर कातलाना हमले के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। और इस बात पर हमने जेल का पिछला दरवाजा तोड़कर वहां दीवार बनवा दी है, ताकि कोई गद्दार आपको वहां से भगाने में कामयाब ना हो सके। पुलिस मोबाइल की फ्रंट सीट से उतरते इंस्पेक्टर जैन ने चेहरे पर तमस्कराना मुस्कुराहट सजाए कहा, तो सिपाही ने इसके हाथों में हथकड़ी डाली, जबकि दूसरे सिपाही ने आदम के हाथों में भी हथकड़ियां डालते उसे धक्का देकर इंस्पेक्टर जैन के सामने किया। आप भी आइए आदम साहब और हमें बताइए कि पुलिस अफसर से कैदी तक का सफर तय करने में कितना मजा आया। वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि आपने इंतहाई चालाकी से आईजीपी को हमारे खिलाफ करने की कोशिश की। लेकिन वो क्या है ना कि आज सुबह सजावल पर कातलाना हमले की वजह से अब आप दोनों को जेल की सलाखों में कैद होने से कोई नहीं रोक सकता। और मज़े की बात तो ये है कि अब आईजीपी भी आपकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। हाय किस्मत भी कैसे-कैसे खेल खेलती है। कुछ माह पहले जिस जेल में आप बारोब अफ़सर बने घूम रहे थे, आज वहीं आप सर झुकाकर मुजरिमों की तरह काल कोठरी में जाएँगे। हक हाँ। आदम के गुस्सैले तासरात को नज़रअंदाज करते इंस्पेक्टर जैन ने अफसोस से कहा और फिर सुरेश की तरफ बढ़ा जो ज़्यादा खून बह जाने की वजह से आहिस्ता-आहिस्ता होश खोने लगा था। तुम्हें लगा कि तुम इतनी आसानी से बचकर निकल जाओगे? अब अब्रिश वो अपने खून से तर कपड़ों को देखते कपकपाती आवाज में अब्रिश का नाम लेते होशो-हवास से बेगाना होकर सड़क पर ढह गया। अब्रिश आखिरी बार उसकी होंठों की लर्जिश ने ये नाम टुकड़ों में पुकारा जबकि सिपाहियों की गिरफ्त में खड़े आदम ने पूरी शिद्दत से उसे पुकारते धरती को हैरान छोड़ दिया। जुरेज, यही आवाज चारों तरफ गूंज रही थी।